Deepak sir, and I'm back on my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. And today I'm here with a very hot topic of organic chemistry, and that is optical isomerism in biphenyls. Okay, some of my students they suggested me, sir, आप एक topic लीजिए, and this topic is very important for IIT JAM exams, IIT JEE and of course NEET. So दोस्तों आज हम देखेंगे optical isomerism in biphenyls. Okay friends, so now we'll see biphenyl. So this is biphenyl, okay, and you can see two phenyl rings are connected by a single bond, a single covalent bond. Now very first thing that should come to your mind, क्या ये दोनों ग्रुप फिनाइल जो रिंग है वो कोप्लेनर है, क्या वो सेम प्लेन में है? आंसर इज नो. In fact, due to the steric and electronic repulsion between the two rings and the atoms at the ortho position, दोनों रिंग जो है वो एक प्लेन में नहीं होते. दूसरा रिंग जो है it basically is at 90 degree with the other ring. Okay, that means these two rings are non-planar. They are not in one plane. Fine. Because of the electronic repulsion. So now can we see that ki biphenyl, simple a pure biphenyl is optically active? In fact answer is no, because of the feasibility, that is the free rotation of CC bond. CC bond का free rotation के कारण the forms again come back in the सेम फेज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स. और दोनों फॉर्म के बीच में जिसके अंदर वो 90 डिग्री पर होता है और प्लेनर होता है, दोनों फॉर्म के बीच में 10 किलो कैलोरी के आसपास का फ़र्क होता है. दैट मीन्स यू कैन नॉट आइसोलेट द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्योर बाइफिनाइल. देन व्हाट मेक्स अ बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव? सो कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. None of the phenyl rings should have plane of symmetry. Okay, there should not be a symmetrical plane. Okay, very important funda. और दूसरा, there should be groups attached on the ortho position. There should be at least two groups, one in each ring, and in one ring no two groups should be same at the ortho position. No two groups should be same in one ring at the ortho position. Remember, and the group should be bulky so that there is more steric and the electronic repulsion. Now we can simply understand this from these structures. You can see here the two groups, both are same group, but this does not mean the compound is having a plane symmetry, because these two rings are at 90 degree with each other, or simply they are disoriented from the plane of each other. They are not planar. Okay, now we can see here this can be like groups can be same here and here. दो अलग अलग रिंग पे सामने सामने, ओके, ऑन द ऑर्थो पोजिशन द ग्रुप्स कैन बी सेम, बट दे शुड नॉट बी सेम हियर एंड हियर. यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पर भी ग्रुप सेम हो गया, भले यहाँ अलग है, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म माय डियर फ्रेंड्स. ओके, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यू नो दैट उस पर दो फॉर्म होता है. ओके, एक हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो और दूसरा होता है लीवो. फाइन. सो दो फॉर्म जो होते हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर फॉर्म्स होते हैं, और वो दो फॉर्म तब भी पॉसिबल होता है व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ सी बॉन्ड रोटेशन. ओके, एंड इसीलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को एट्रोपिजोमेरिज्म कहते हैं. एट्रोपिजोमेरिज्म.
एट्रोपिजोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ग्रीक टर्म में ए मतलब नहीं होना, एट्रोपोज का मतलब होता है टर्न. So when the turn, that is the CC bond rotation, is restricted, restriction क्यों होता है? Because of the groups at the ortho position. जितना बल्कि होगा उतना ही वो इलेक्ट्रिकली और स्टेरिकली वो हिंडर करेगा. तो दोनों ग्रुप आपस में डिसओरिएंट रहेंगे. They will not be coming in one plane, and hence they will not have the plane of symmetry, and the molecule as a whole will become chiral. Okay, so these are different possibilities. Like in this case, कोई पूछेगा सर यहाँ पे तो ऑर्थो पे सेम ग्रुप है, फिर तो नहीं होना चाहिए. तो नो, इट्स नॉट दैट. इमेजिन कि सिमेट्रिकल प्लेन ऐसे होगा. ओके, इस केस में ऐसे होने से यू कैन सी हियर दो ए है, यहाँ पे सिंगल ए है. तो दिस हाफ इज नॉट सेम एज दिस हाफ. ओके, तो यू मस्ट सी ओवर ऑल. ओके, सो डियर ऑल, वंस अगेन आई जस्ट नरेट इन शॉर्ट. बाइफिनाइल्स में दो फिनाइल रिंग एक प्लेन में नहीं होते. दे आर ओरिएंटेड at 90 degree with each other because of steric and electronic repulsion. Condition for optical isomerism is this, कि none of the phenyl ring should have what? A plane of symmetry. Okay, and there should be groups on the ortho position. That is, they should be ortho substituted, and the group should be bulky. और ये बात होना चाहिए कि कम से कम दो ग्रुप हो, one in each, clear? And one thing more, एक फिनाइल रिंग में दोनों ग्रुप ऑर्थो पे सेम नहीं होना चाहिए. ओके, लाइक वी हैव डिस्कस द थिंग. इसको एट्रोपिजोमिज्म क्यों कहते हैं? Because this kind of optical isomerism is due to the restriction of the CC bond rotation. ओके, तो इनके डेक्स्ट्रो ऑलिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एट्रोपिजोमर्स. Okay, so now we'll take some examples. Look at this example, dear all. The first one, so you can see very clearly at the ortho position of the first ring, the two groups are same. Okay, तो हमारे कंडीशन के मुताबिक दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए ऑर्थो पोजिशन में. किसी भी एक रिंग में द ग्रुप ऑन द ऑर्थो शुड नॉट बी सेम. सो दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रुप्स अलग हैं. ओके, एंड डेफिनेटली दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ पर देखो, ये COH and COH. Okay, these two are almost trans to each other in the two rings. This will not show optical isomerism at the room temperature. Okay, this will not show. I was talking about the third one. This will not show optical isomerism at the room temperature. इसीलिए क्योंकि उनका रिपल्सन स्टेरिक जो इफ़ेक्ट होता है उनके कारण दोनों रिंग जो होना चाहिए दो अलग प्लेन में होने चाहिए बिकॉज ऑफ रिपल्शन. बट क्योंकि ये इसको काउंटर रिपल करेगा, ये इसको करेगा काउंटर रिपल, सो बोथ विल ट्राई टू एनिलिएट ईच अदर्स रिपल्शन. ओके, और ग्रुप इतना बल्कि नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट पैदा करेगा. एंड सो एट रूम टेम्परेचर दिस रेसेमाइज का मतलब होना फिर से उसी फॉर्म में आ जाना. मतलब रूम टेम्परेचर पे यू कैन नॉट आइसोलेट देम, दे आर नॉट आइसोलेबल at the room temperature. They can't be resolved. Okay, but at a very low temperature they do so optical isomerism. In this case I और I, of course I और I भी सेम होगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा, and therefore it will try to regain its own plane, and hence it will have now what? A plane of symmetry.
यू कैन सी दैट अगर ये दोनों को प्लेनर बन जाते हैं देन दिस विल बी a C2 axis. Along this we can see that the same groups repeat. इसलिए this will not show, this will also not show isomerism. Okay, now there is an exception. If instead of the COH group there is a sulfonic acid group, okay, so you can see SO3H group is a large group because of sulfur atom, so it will have a lot of or an intense steric effect and electronic effect, so repulsion would be drastic in this case. और इसीलिए इस केस में it can not form a racemic mixture. That means दोनों फॉर्म कभी भी रेसिमाइज नहीं हो पाएंगे बिकॉज रिपल्शन ज़्यादा होगा. तो भले ही इनका स्ट्रक्चर ऊपर के दो स्ट्रक्चर के जैसे है बट दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये एक्सेप्शन आप ध्यान रखना. और लास्ट में ये दो एग्जाम्पल्स भी आप देखो. ये दो एग्जाम्पल्स में यू कैन सी दैट यहाँ पर दो ग्रुप, यहाँ पर दो ग्रुप सेम है दोनों रिंग में. यहाँ पर NO2 है, यहाँ पे NO2 है, बस इसमें एक NO2 ज़्यादा है. इनफैक्ट this will show optical isomerism because of the steric repulsion. This will show 200 times more than this, okay, because of this NO2 group at the meta position. इसके वजह से एक ब्लस्टरिंग इफेक्ट बोलते हैं, उसके वजह से ऑर्थो जो ग्रुप्स होते हैं इनका डायमेंशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन जोन एंड हैंस मोर स्टेरिक रिपल्शन इज क्रिएटेड गाइस. सो आई होप यू गॉट ऑल द एग्जाम्पल्स फाइन एंड फ्रॉम दिस you can now conclude what kind of diphenyls or biphenyls can show optical isomerism. Okay guys, now we'll see the RS configuration of the isomers of biphenyl. Fine. हम जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर में दो फॉर्म होते हैं. Both are non-superimposable mirror image. And R and S configuration we have seen in case of what? The Fischer projection of any molecule. बट इसमें हम कैसे बताएंगे R कौन है और S कौन है? तो लुक हियर, यहाँ पर भी रूल वही होता है CIP, दैट इज कैन, इनगोल्ड एंड प्रेलॉग का रूल. क्लियर? हम देंगे प्रायोरिटी ग्रुप्स को 1 2 3 4 4 नंबर देंगे. रिमेंबर दिस थिंग, दिस स्ट्रक्चर जहाँ पे मैंने ये ऑर्थो पे दो सिंगल बॉन्ड बना है, जस्ट लाइन से बताया है, दीज आर प्लेनर बॉन्ड्स, दिस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. बट यहाँ पे एक डार्क शेड और ए डैश्ड वेज, दिस इज सॉलिड वेज, डैश्ड वेज स्ट्रक्चर और द बॉन्ड्स. ये बॉन्ड दिखा रहा है कि COH जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है और डैश्ड बताता है वो प्लेन के अंदर जा रहा है. लेकिन हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन के ऊपर जा रहा है और ये प्लेन के नीचे जा रहा है. इतना आपको आना चाहिए. डैश्ड वेज वाला जो भी अटैच हुआ ग्रुप वो प्लेन के नीचे है, ओके, और ये प्लेन के ऊपर है. क्लियर? नाउ हमेशा जब आप इसमें नंबरिंग देंगे तो नॉर्मली हम क्या करते थे RS के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको हो उसको नंबर 1. पर इसमें हम ऐसा करेंगे, इस रिंग को जहाँ पे दोनों बॉन्ड प्लेनर है इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी रिंग को, और इसमें दो ग्रुप को 1 and 2 देंगे, और इसमें मिलेगा 3 and 4 जिसमें सॉलिड और डैश्ड वेज बॉन्ड बनाया है. सो इस रिंग में नंबर 1 ऑफ कोर्स मिलेगा OH को, बिकॉज O का एटॉमिक नंबर हायर होता है कंपेयर टू द कार्बन, बिकॉज पहला एटम देखना होता है हमें, कोई भी ग्रुप लगा हो उसका. ओके, दैट यू ऑल नो. दिस विल बी 2. इस केस में इसको 3 मिलेगा हायर प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी विल बी 4, बिकॉज यहाँ पे C लगा है पहला आइटम और यहाँ पे N लगा है पहला आइटम. नाउ सिंपली इग्नोर 4. हाउ डू यू सी 1 2 3 गोस? अगर 1 2 3 आप देख रहे हो, इट इज़ गोइंग clockwise, I'm sorry, anti-clockwise, it's going anti-clockwise. तो anti-clockwise अगर रोटेशन होता है देखने पर नंबर्स को,
तो हम उसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? एस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एस बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जब हम ए देखते हैं 1 2 3 को रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी, अगर क्लॉकवाइज होता तो हम आर बोलते और एंटी क्लॉकवाइज होता तो एस बोलते। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी को देखना बहुत जरूरी। फोर्थ प्रायोरिटी अगर प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, वी हैव टू राइट इसका उल्टा, दैट इज आर, ओके। सो यहाँ भले एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप का जो प्रायोरिटी, जो फोर्थ ग्रुप है यहाँ पर, वो प्लेन के ऊपर है। सो वी हैव टू रिवर्ट, एज पर द रूल फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन के अंदर होना चाहिए, या इट शुड बी बिलो द प्लेन। यहाँ पे फोर्थ वाला प्लेन के ऊपर है, वी हैव टू रिवर्स द आंसर। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने एस नहीं बोल करके आर बोला। और इस केस में वन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको या इसको। Now look, let me make it clear. It's the same molecule. Simply have changed the position of COH and NO2. This is CH3. So this will be 2. यहाँ पर इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4. You can see 1 2 3 is going anti-clockwise here also. Anti-clockwise. फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है? डैश्ड बॉन्ड। डैश मतलब प्लेन के अंदर या प्लेन के नीचे जा रहा है। ऑफ कोर्स, तो जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, इसका एस ही बोलेंगे, इसमें हम आंसर को रिवर्ट नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। जिसमें सिंगल बॉन्ड प्लेनर होंगे उसमें हम देंगे पहला प्रायोरिटी 1 and 2 and 3 और 4, उसके बाजू वाले रिंग का देंगे, ओके। वी सिंपली गो थ्रू 1 2 3 एंड विल सी कि क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज होता है तो हम नॉर्मली बोलते हैं आर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम बोलते हैं एस। लेकिन हम ये भी देखना होगा कि इस दूसरे वाले रिंग में जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो रिंग के ऊपर है या नीचे है। तो दिस शोज ये रिंग के ऊपर है बिकॉज ऑफ द डार्क बॉन्ड, दैट इज सॉलिड वेज। सो हमें रिवर्स करना पड़ेगा आंसर को, हमें आर बोलना पड़ेगा। और इस केस में फोर्थ प्रायोरिटी अंदर ही जा रहा है, तो वी हैव टू से इट एस बिकॉज इट्स गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो हम आर का आर ही रखते। ओके, आई होप यू गॉट दिस। I hope I have made myself very much clear about the optical activity in bifinite. Every term I try to make it so simpler. Fine. फिर भी कोई डाउट है तो you can ask me on my WhatsApp number. Fine. दोस्तों, please keep on suggesting me the topics so that I can give some more useful lectures. Okay. I'll be coming again back on my channel with some more important topics, informative topics on organic chemistry, and of course later on physical chemistry and inorganic chemistry. Thank you so much for watching. Do like, subscribe my channel. Thank you so much.